Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to a lecture in Production and Operations Management. The course code is MGT362. The course book is Operations Management 10th edition by Jay Heiser and Barry Randall. Before starting today's presentations and before starting the overall presentation on this course, let me give you an overview of my history, my work experience. As you know, my name is Dr. Fahad Amjad. I did my mechanical engineering from NUST in 2005. Afterwards, I worked 2 years in a multinational company dealing in power production by the name of AES Lalpir. It was a 700 megawatts thermal power plant in Pakistan in the Muzaffargarh area. I first joined this company after I graduated in 2005 as an internee, and then I went on to become a full-time employee in this company. I worked almost 2 years in this company, AES Lalpir, and also I worked as an internee in Texla Al Khalid tank production and assembly site. It was during my engineering years. I wasn't a graduate yet, but it was around 2004 or 2003. It was during when I was doing my engineering. There in Texla, I was exposed to different production techniques. How do you assemble a large project or a large product? Afterwards, when I graduated, I joined AES. I worked there for 2 years as an operations engineer. I was responsible for running the power plant. Although, as you all know, the power plant of 700 megawatts is a pretty big equipment, but I was one of the person in the overall operations team. The operations team is responsible for proper running and maintenance of the power plant. We were the people who made the decisions on how to operate it, when to go on maintenance. All of these operational level decisions I took during 2 years of my stay in AES Lalpir. After these 2 years, I was selected for HEC scholarship, and I did my MPhil and PhD from France. My MPhil was in industrial engineering. I did it in 2008. The university was INPG, École Nationale Polytechnique Grenoble, and the school was ENSGI, École Nationale Supérieure de Génie Industriel, the school for industrial engineering. My master's thesis was supplier selection using dynamic analytical hierarchical process. The website of the university is given in the slide. Afterwards, after my MPhil, I went on to do my PhD in supply chain. I finished my PhD in 2012, in December 2012. The name of the university was Université de Lorraine, and the name of the college was NMENIM, École Nationale Institut de Metz. The thesis which I presented for my PhD was enterprise integration using semantic web ontologies. Again, it was on how to integrate different resources within a supply chain using web ontology. The email or the UML address of the university is also given. So this is my overall experience. I have been teaching for the past 2 years, partly in ComSets. First I joined after 2012. When I came back to Pakistan, I immediately joined Ghulam Ishaq Khan Institute, and after working there I joined ComSets, and currently I am employed as an employee of ComSets. So let's start the first chapter or the first topic, which is on introduction. What are we going to study, what you can expect in production and operations management. So let's see what is the outline of this overall chapter. First of all, we are going to discuss what is operations management. Then we are going to see how we can organize to produce goods and services. Of course, when you are in if you are
providing a service or you are producing a component, then you are either in service sector or in production sector. So you are either producing goods or producing services. So we are going to discuss this also, that what is service, what is goods. We are also going to discuss why we have to study operations management, what do operations managers do. We are also going to discuss what are the historical, you can say, historical points in the history of operations management. We are going to discuss what is the difference between supply services and goods. Then we are going to discuss some of the new trends in operations management. And towards the end of this chapter, we are going to see what is productivity, how can we measure it, and what are the different problems in measuring productivity in service sector. And in the end of this chapter, we are going to discuss what are some of the social and ethical responsibilities for operations managers. So why do we study operations management? Production is the creation of goods and services. Operations management is a set of activities that create value in the form of goods and services by transforming input into output. अब production तो आपका जो the word production, it is something that you create, anything tangible thing, a good or services or any activity that you are creating. So what are you producing? You are either producing a good or a service. Operations managers का ये काम होता है कि जी वो जो चीज़ आप बना रहे हो उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो उसके अंदर आप प्रोसेसेस कर रहे हो और जो आउटपुट आप ले रहे हो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए. तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के अंदर ये है कि जी किस तरीके से आप चीज़ बना रहे हो और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से आपने मैनेज करना है, इनपुट्स जो आ रही हैं, आउटपुट्स जो निकल रही हैं और जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारे प्रोसेस के अंदर, उनको किस तरीके से मैनेज करना है. बेसिक काम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स का ये होता है. अब किसी भी कंपनी के अंदर, आइदर इट इज़ अ कंपनी दैट इज़ प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ टेंजिबल गुड्स और इट इज़ अ कंपनी विच इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, you always have some essential functions. एसेंशियल फंक्शंस क्या मतलब कि जी ये वो फंक्शंस हैं जो हर कंपनी के अंदर आपको नज़र आएंगे. उसके अंदर पहला फंक्शन जो है दैट इज़ ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का बेसिक काम ये होता है दैट दे हैव टू जनरेट डिमांड, कि जी किस तरीके से अपने कस्टमर को अपने कस्टमर को इस कंपनी की तरफ माइल किया जाए, किस तरीके से डिमांड को जनरेट किया जाए. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर्स का जो काम होता है, उनका बेसिक काम होता है कि किस तरीके से चीज़ को बनाना है. ठीक है, मार्केटिंग वालों ने तो डिमांड क्रिएट करनी है ना. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स का काम है कि जी किस तरीके से आपने वो जो डिमांड जनरेट हो गई है उसको बनाना है. डिमांड फॉर गुड्स और डिमांड फॉर सर्विसेज. उस डिमांड अगर आई है कस्टमर की तरफ से कि जी हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, ये जो डिमांड आई है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के जी किस तरीके से डिमांड जनरेट की जाए. जब एक दफ़ा डिमांड आ गई, अब ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजर का काम है कि जी किस तरीके से वो सर्विस या गुड बनाएं. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो तीसरा एसेंशियल फंक्शन है, उनका काम होता है ट्रैक हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, पे बिल्स, कलेक्ट द मनी. ये आपकी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग के, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लोगों का काम होता है कि जी जो चीज डिमांड कोई और क्रिएट कर रहा है, उस चीज को बना कोई और रहा है, उसको मॉनिटर तीसरा बंदा कर रहा है कि जी ट्रैक करना ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को, बिल्स को पे करना, कलेक्ट करना, जो आपके रेवेन्यूज हैं, ये सारे का सारा काम फाइनेंसेस का होता है. तो किसी भी कंपनी, आइदर इट इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, it has these basic three functions. So let's see some of the examples. We're going to see some of the examples of basic businesses. First of them is a commercial bank. As you can see, the part in orange is other functional areas like marketing and finance, and the part in blue is basically the work of production and operations managers. So what we will be studying will be related to any entity, any organization, the work
which you can find there based on this course is on these are these activities in which you can expect the production and operations management subject to have an influence on these activities. सबसे पहले बैंक्स को हम देखते हैं, कमर्शियल बैंक्स को. आपके पास टेलर्स की स्केजुलिंग, जो लोग बैठे होते हैं, चेक कलेक्शन, चेक आप अकाउंट से पैसे निकालना चाहो, अकाउंट में पैसे डालना चाहो, तो जो लोग आप जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनको टेलर्स कहा जाता है. उनकी स्केजुलिंग करना कि जी किस बंदे की कब ड्यूटी लगानी है. आपने जो चेक क्लियरिंग का प्रोसेस होता है उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, वो सारी प्रोसेस डिज़ाइन में आ जाता है. कलेक्शन का प्रोसेस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन किस तरह से करना है, जो आपका वो जो वॉल्ट है जिसके अंदर आप सारे पैसे और सारी चीज़ें रखते हो बैंक की, उसका ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज करने हैं, उसकी मेंटेनेंस किस तरह करनी है, सिक्योरिटी को किस तरह मेंटेन करना है. ये सारे के सारे काम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स को इन अ कमर्शियल एंटिटी लाइक कमर्शियल बैंक दे हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब जाहिर बात है बैंक के अंदर और काम भी होते हैं, फाइनेंसेस के भी होंगे, मार्केटिंग के भी होंगे, और वो जो काम है वो आपको ऑरेंज के अंदर, इस स्लाइड के अंदर जो ऑरेंज सेक्शन है उसके अंदर नजर आ रहा है. तो बेसिक जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, दे विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दीज ब्लू एक्टिविटीज विच ऑन द एक्टिविटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द ब्लू पार्ट ऑफ द स्लाइड. अब हम देखते हैं कि जी एयरलाइंस, जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं, उसके अंदर ऑपरेशंस का क्या अमल दखल है. उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम है. आप वही बात है, किसी भी एंटिटी के अंदर 3 फंक्शनल एरियाज होते हैं कि जी ऑपरेशंस, अकाउंट्स एंड मार्केटिंग. तो आप देखें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑपरेशंस मैनेजर्स को करने पड़ते हैं. आपको ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे के सारे काम करने पड़ते हैं. ग्राउंड ऑपरेशंस को मेंटेन रखना पड़ता है, फैसिलिटी को मेंटेन रखना पड़ता है, केटरिंग एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है. ऑपरेशन, जो फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी स्केजुलिंग आपको करनी पड़ती हैं. इसी तरह से बाकी मैनेजमेंट डिसीजंस जो एयरपोर्ट्स के अंदर लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग योर कैपेसिटी, रिगार्डिंग योर स्केजुलिंग, रिगार्डिंग मेंटेनेंस, रिगार्डिंग क्वालिटी, ये सारे के सारे काम ऑपरेशंस मैनेजर्स को करने पड़ते हैं इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एयरलाइंस. अब तीसरी प्योरली जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ऑपरेशंस का बहुत अमल दखल है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. किसी भी चीज़ को आप बना रहे हो, किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ के अंदर किसी तरह की वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग. आपके पास कोई चीज़ बन रही है, अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और अ गुड, ये जो है ये आप मैन्युफैक्चरिंग से ही बना सकते हो. सर्विसेज भी जो हैं वो भी आती हैं ऑपरेशंस के अंदर. तो ऑपरेशंस मैनेजर को बोथ सर्विसेज एंड गुड्स दोनों के अंदर डील करना पड़ता है. अब हम देखते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं. ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जाहिर बात है एक सेक्शन है वो डिमांड क्रिएट कर रहा है, दूसरा सेक्शन जो ऑपरेशंस का है वो डिमांड को, जो डिमांड जनरेटेड डिमांड है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है. और तीसरा जो सेक्शन है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का है, वो बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं और कलेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ मनी उसको मैनेज कर रहे हैं. तो ऑपरेशंस का क्या काम है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ता है, आपको फैसिलिटी की कंस्ट्रक्शन मेंटेन करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट मेंटेन करने, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करनी होती है, नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज करना है, आपने डिमांड को फोरकास्ट करना है, आपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को डिज़ाइन करना है, आपने मशीनों की एफिशिएंसी को देखना है और मशीनों की क्वालिटी को देखना है, आपने प्रोसेस को एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करना है. तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के या प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के जो मैनेजर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर करने पड़ते हैं. So why do we study operations management? Operations management is one of the 3 major functions of any organization. We want to study how people organize themselves for productive enterprise. तो अब क्यों पढ़ रहे हैं कि जब
ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है, ऑपरेशंस इज अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपनी, आइदर इट इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट ऑलवेज हैज अ वेरी मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड अकाउंटिंग. अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इट इज अ बिग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पता होना जरूरी है कि जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या दूसरे, अगर आप ऑपरेशंस के अंदर काम नहीं करना चाहते मगर एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि जी ऑपरेशंस मैनेजर्स का काम क्या है. वी वांट टू नो हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. एवरीवन वांट्स टू नो हाउ something is created, how something is manufactured. It's human nature. He wants to understand how things are working around him. We want to understand what operation managers do. If you understand what they are doing, then you can easily manage them, easily collaborate with them, that you know their boundary, you know your boundary. If you have a project which requires collaboration of both areas, then you have some idea who to go to and how can we do it. Operations is such a costly part of an organization. Of course, operations is a big part of an organization, and you have to understand what are its basic realm of operations, what is the basic boundary of operations. So what do operations managers do? Operations managers, they plan, they organize, they staff, they lead and they control. तो बेसिक उनका काम है कि उन्होंने प्लानिंग करनी है, किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, उन्होंने फोरकास्टिंग करनी है, उन्होंने फोरकास्टिंग के थ्रू स्टाफिंग करनी है कि कितने लोग हमें रिक्वायर्ड हैं, उन्होंने लेआउट डिज़ाइन करना है कंपनीज़ का, उन्होंने कैपेसिटी डेवलप करनी है कंपनीज़ की, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उन्होंने कंट्रोल भी करना है कि जी क्या जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सही चल रहे हैं, विद इन लिमिट्स चल रहे हैं, जो डिज़ाइन लिमिट्स थी उस पे चल रहे हैं, क्या हमने सही नंबर ऑफ पीपल को हायर किया है, कम लोग तो नहीं हायर किए, ज़्यादा लोग हायर करने की ज़रूरत तो नहीं है, कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. ये सारे के सारे जो है ना डिसीजंस ये ऑपरेशंस के अंदर आते हैं. यू हैव टू प्लान, यू हैव टू ऑर्गेनाइज करने में क्या, किस तरह का लेआउट होना चाहिए, किस जगह पे फैक्ट्री लगाएं, कितनी कैपेसिटी की फैक्ट्री लगाएं, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, लोग किस तरह, कौन कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसी तरीके से कंट्रोल भी करना है. फिर आपने लीडिंग, तो जाहिर बात है कि जी आपने लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट. तो ये सारे के सारे काम जो है ये ऑपरेशंस मैनेजर्स का काम होता है. ओवरऑल what we can expect out of this course, production and operations management. First of all, we are going to see today is an introduction. In this lecture we are going to just I'm going to just introduce you to the subject, but what you can expect out of the subject is first of all we have to see how we can make strategy, so what we can expect out of this course. Of course, today is an introduction to the overall subject, but during the course of these presentations we will be studying a number of topics. First of all, we are going to see how we can develop strategy, what is mission, how we can convey our enterprise strategy and mission. We are going to also study how we can manage different projects. We're going to also see how we can forecast different demand capacities, sales demand, production capacities, how we can forecast into the future. Afterwards, we are going to study how we can manage quality using different techniques. We are going to study managing quality in two chapters. One of is chapter 6 and the other one is chapter 6S, which is supplement of 6. We are going to also study process and capacity design. कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोसेस को डिज़ाइन करना है, प्रोसेस को डिज़ाइन करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन के अंदर.
हम और भी एडिशनल टॉपिक्स जो हैं वो लोकेशन स्ट्रेटजी पढ़ेंगे कि जी किस तरीके से लोकेशन को सेलेक्ट करना है, लोकेशन की सिलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फैक्ट्री लगानी है तो कहाँ लगानी है, वेयर हाउस लगाना है तो कहाँ लगाना है, अगर आपके पास एक ख़ास तरह की कैपेसिटी है या एक नंबर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी है और आपको उस कैपेसिटी को किसी एक डिमांड है आपके कस्टमर की और आपने उस डिमांड को फुलफ़िल करना है यूजिंग अ नंबर ऑफ कैपेसिटीज़ दैट यू हैव इंस्टॉल्ड, तो ट्रांसपोर्टेशन उसकी किस तरीके से करनी है, तो ये सारे के सारे आइडियाज़ हम लोकेशन स्ट्रेटजी के अंदर डिस्कस करेंगे, विच इज़ चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर मैंने एक एडिशनल मॉड्यूल डाल दिया विच इज़ क्वान्टिटेटिव मॉड्यूल सी, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो लोकेशन स्ट्रेटजी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम चैप्टर ए एंड क्वांटिटेटिव मॉड्यूल सी भी पढ़ेंगे। द क्वांटिटेटिव मॉड्यूल्स इन द पार्ट 4 फोर्थ पार्ट ऑफ योर बुक इसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। तो जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो वी विल हैव क्वांटिटेटिव मॉड्यूल सी एज वेल। इसके बाद हमने लेआउट स्ट्रेटजीज भी पढ़नी है कि किस तरीके से फैक्ट्री का जो या किसी भी ऑफिस स्पेस को आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, लोगों को किस तरह से बिठाना है, उनके बेसिक फ़ायदे क्या होते हैं, रिटेल आउटलेट्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से उनके डिज़ाइन के डिज़ाइन के बेसिक आइडियाज़ या बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वेयर हाउसेस को डिज़ाइन करने में क्या क्या बेसिक आइडियाज़ हैं। इसी तरीके से हमने उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ना है। दिस इज़ टूवर्ड्स द एंड ऑफ दीज प्रेजेंटेशंस, जो हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे कि जी इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज की जाती है, इन्वेंट्री के बेसिक आइडियाज़ क्या हैं, कॉस्ट क्या होती है इन्वेंट्री के अंदर। अगर आपके पास डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं कि जी आपने एक दफ़ा ऑर्डर करना है, 2 दफ़ा ऑर्डर करना है या मल्टीपल दफ़ा ऑर्डर करना है, तो कौन सी पॉलिसीज़ आप यूज़ करेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो 10 आपकी बुक के अंदर 10 या 11 क्रिटिकल डिसीजंस दिए हुए हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, तो हम इन 32 लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन के साथ किस तरह से हम स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, हम इन टॉपिक्स को देखेंगे, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक्स को देखेंगे कि जी प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, हम फोरकास्टिंग की टेक्निक्स को देखेंगे, क्योंकि फोरकास्टिंग इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जी आपने किसी तरीके का भी कैपेसिटी डिसीजन लेना हो कि जी मैंने कैपेसिटी बढ़ानी है या कम करनी है, या मैंने ज़्यादा चीज़ें मंगवानी है या कम चीज़ें मंगवानी है, तो ये सारी की सारी फोरकास्टिंग पे डिपेंड करती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन मैनेज क्वालिटी, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू हैव 2 chapters. First chapter is chapter 6, which basically discusses the theory of quality, and chapter 6S, which is supplement of S, which is basically concerned with statistical process control. इसके अंदर हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम प्रोसेस को कंट्रोल एंड मॉनिटर कर सकते हैं। हम इसके अलावा प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन भी देखेंगे। दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन चैप्टर 7। इसके अंदर हम पहले देखेंगे कि जी प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस को किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, प्रोसेस को डिज़ाइन किस तरह किया जा सकता है, प्रोसेस को मॉडिफाई किस तरह किया जा सकता है, प्रोसेस की एफिशिएंसी किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम प्रोसेस एंड कैपेसिटी कंट्रोल के अंदर देखेंगे, प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोकेशन स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, कहाँ लगाना है वेयर हाउस, कहाँ लगानी है फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करनी है फैक्ट्री टू वेयर हाउस ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने लेआउट स्ट्रेटजीज, ऑफिस का किस तरह का लेआउट होना चाहिए, फैक्ट्री का किस तरह का लेआउट होना चाहिए, रिटेल स्पेस का किस तरह का लेआउट होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और आखिर में हम अपने इस 32 लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि जी कितना ऑर्डर करना है, कितने साइज़ का ऑर्डर करना है, कितनी देर बाद ऑर्डर करना है, रीऑर्डरिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए, प्रोबेबिलिस्टिक अगर फ्यूचर के अंदर आपको सर्टेन नहीं है डिमांड और आपके पास एक हिस्टोरिकल डाटा तो प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड आ रही है, तो आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर टॉपिक्स जो आपकी बुक के अंदर हैं उसके अंदर हम कवर करेंगे। जो बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ऑपरेशंस के वो हम इस 32 लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर उनको कवर करेंगे।
वही बेसिक पिछली स्लाइड है उसकी एक आप कह सकते हैं समराइज्ड या मोर डिटेल वर्जन है कि जी डिज़ाइन एंड गुड सर्विसेज, व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड वी ऑफर, जो एक ऑपरेशंस मैनेजर्स के बेसिक डिसीजंस होते हैं कि जी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है, हम किस तरीके से इन सर्विसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करनी है, क्वालिटी मेंटेन किस तरह से की जा सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, तो ये भी हम देखेंगे। प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन करनी है तो प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन में किस तरीके का प्रोसेस हमने लगाना है, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उस प्रोसेस की, कोई इक्विपमेंट, कोई टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, उनको किस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन के अंदर हम पढ़ेंगे। लोकेशन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर वेयर शुड वी पुट द फैसिलिटी, कहाँ लगानी है फैसिलिटी, व्हाट क्राइटेरिया शुड वी बेस द लोकेशन डिसीजन के जी किन क्राइटेरियाज पे हमने फैक्ट्री लगाने के डिसीजन लेने हैं, वेयर हाउस लगाने के डिसीजन लेने हैं। लेआउट के अंदर हम बेसिकली हाउ शुड वी अरेंज द फैसिलिटी, हाउ लार्ज मस्ट द फैसिलिटी बी टू मीट अवर प्लान्स, तो जी कहाँ किस तरीके से अरेंजमेंट करनी है फैसिलिटी की और कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्वेंट्री के अंदर जो हम पढ़ेंगे कि जी हाउ मच इन्वेंट्री ऑफ ईच आइटम शुड वी हैव, व्हेन डू वी रीऑर्डर, कितनी इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए और रीऑर्डर कब करना है। अब ये जो एडिशनल टॉपिक्स हैं जिस तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज after production and operations management, when you are you can say an expert or somewhat familiar with the concepts of operations management, then we go to the supply chain management. In this supply chain management का क्या होता है कि जी अब आपके पास multiple factories हैं, multiple suppliers हैं, multiple manufacturers हैं, multiple customers हैं, तो इस पूरे supply chain को किस तरह manage करना है, तो वो सारे के सारी थ्योरी जो होती है वो supply chain management के अंदर आती है। इसी तरीके से maintenance decisions और scheduling decisions ये हम लोग इधर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि we have limited time 32 के अंदर, तो I have to prioritize and by the priority that I have decided is normally कि जी inventory management तक हम देखते हैं, हम layout strategies देखेंगे, location strategy, जो basic topics हैं production and operations management के, ताकि हम पहले उनको cover कर लेंगे। These are much more you can say you can the topics which you can, if you feel like कि जी आप scheduling या maintenance में आपको ज़्यादा शौक है या आप इनको पढ़ना चाहते हैं, तो you can do a self study. But overall in 32 lectures the amount of material that we are going to be covering, it's going to be a very hectic presentation, a very information filled presentations. So I would suggest कि जी आप प्रेजेंटेशन के बाद बुक को भी पढ़ें, बुक के अंदर एग्जांपल्स, जो हम एग्जांपल्स प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे उनको भी पढ़ें। आपकी हर जो बुक के अंदर प्रॉब्लम दी हुई है या एग्जांपल दी गई है, उसके बाद आपको रेलिवेंट प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सरसाइज के अंदर वो भी उनके नंबर भी बताए हैं। आई वुड सजेस्ट कि जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करें उनकी जो रेलिवेंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं आप वो भी जाके ज़रूर सॉल्व करें। मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल ये है कि जी आई एम गोइंग टू गिव यू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द चैप्टर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जी आप जाके स्लाइड्स को पढ़ने के बाद, स्लाइड की प्रेजेंटेशन देखने के बाद यू गो एंड यू रीड दोज टॉपिक्स इन द बुक। दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक विद द प्रेजेंटेशंस, ताकि आप एक एक जो टॉपिक हम कवर करें उसकी जो डिस्क्रिप्शन है या उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो जाके आप बुक के अंदर पढ़ लो। किस तरीके के जॉब्स, what are the jobs that you an operations manager can expect? Operations managers को different types के jobs मिलते हैं, technologies and method, normally technology related jobs भी होते हैं, बाज़ दफ़ा उनको ऐसे jobs भी मिलते हैं जिसके अंदर उनको facility और स्पेस यूटिलाइजेशन के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जी हमारी फैसिलिटी को आपने अपग्रेड करना है या इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ानी है। तो इस तरह के जॉब्स भी, इस तरह के भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। स्ट्रेटेजिक इश्यूज आते हैं कि जी डिसीजन मेकिंग करनी है, अब हमने कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो कैपेसिटी बढ़ाने के जो डिसीजंस हैं दे आर आल्सो टेकन बाय ऑपरेशंस मैनेजर। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाना कि जी अभी हम एक दिन में या 2 दिन में इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन की या सर्विस की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स टाइम अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी ऑपरेशंस मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती हैं।
पीपल एंड टीम डेवलपमेंट के अंदर भी ऑपरेशंस मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर सर्विसेज एंड क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें हम क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे कि जी कस्टमर सर्विस को भी मेंटेन करना, कि इज़ दी कस्टमर सर्विस अप टू द मार्क, उसको भी मॉनिटर करना, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको भी मॉनिटर करना। इस तरह के भी जॉब्स ऑपरेशंस मैनेजर्स को करने पड़ते हैं। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कि जी पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाया जाए, इन्वेंट्री रिडक्शन के अंदर और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, ये सारे के सारे जो काम है ये ऑपरेशंस मैनेजर्स को करने पड़ते हैं। अबाउट 40% ऑफ द मैनेजमेंट जॉब रिक्वायर्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो मैनेजमेंट के अंदर जितने भी जॉब्स हैं उसका ऑलमोस्ट 40% जो है उसके अंदर आपको आइडिया होना चाहिए। ऑलमोस्ट 40% जॉब्स हैं जिनके अंदर आपको एक आइडिया होना चाहिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। कुछ सर्टिफिकेशंस हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, लेट्स डिस्कस। एक आपके पास अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसी कंट्रोल सोसाइटी है, APICS। इट्स एन इंटरनेशनल सोसाइटी विच डिस्कसेस अबाउट डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल इश्यूज। इसी तरीके से अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी है, सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, गुड्स क्वालिटी, ये सारों को कवर करती है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ISM। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PMI इंस्टीट्यूशन, PMI which is प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है, या ये सर्टिफिकेशन इन कॉन्सेप्ट्स को इनकी सर्टिफिकेशन देती है। काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ये भी एक काउंसिल है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इश्यूज के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन देती है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परचेज एंड सप्लाई, ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट इश्यूज के अंदर कि जी आपका सप्लायर सिलेक्शन, ओवरऑल प्रोक्योरमेंट इश्यूज जो हैं उनके अंदर सर्टिफिकेशन देती है। तो आप देखें ओवरऑल जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है उनके अंदर जो सर्टिफिकेशन है वो आपको सप्लाई चेन के अंदर भी मिल रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी मिल रही हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर भी मिल रही हैं, और ओवरऑल आपकी जो जनरल मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल या इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके अंदर भी सर्टिफिकेशन मिलती हैं। कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट इन प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आपके पास ओवरऑल अभी तक 3 सिग्निफिकेंट इवेंट्स आए हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर। पहला सिग्निफिकेंट इवेंट था विच वाज फ्रॉम 17 to 1980s, which was basically focused on cost reduction। किस तरीके से हम प्रोडक्शन करें कि जी हमारी कॉस्ट कम से कम हो। उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आई, ये टेक्निक्स हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। all of these techniques we will be discussing in this series of 32 lectures। फिर अगला जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर जो एरा आया दैट वाज क्वालिटी फोकस्ड, कि जी किस तरीके से, अब आपने सीख लिया कि जी कॉस्ट हमने कम किस तरीके से करनी है। अब जो अगला एरा आया या सिग्निफिकेंट इवेंट आया वो आया कि जी कॉस्ट तो अब हमने कम कर लिया, हमने सीख लिया कि किस तरीके से चीज़ों को सस्ता बनाना है। अब अगला एरा है कि जी किस तरीके से हम क्वालिटी भी बेहतर करें, कॉस्ट भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। उसके अंदर फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए। इसके अंदर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इसी तरीके से और जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये भी हम अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। जो तीसरा एरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आया है दैट इज़ ऑफ मास कस्टमाइजेशन, कि जी आपने लो कॉस्ट प्रोडक्शन करना सीख ली, आपने क्वालिटी प्रोडक्शन करना सीख ली, अब आपने हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी मर्जी की चीज़ बनाना सीखनी है या उसकी मर्जी की चीज़ बना रहे हैं। ये जो है ये ऑलमोस्ट मास कस्टमाइजेशन एरा आजकल हम देख रहे हैं कि जी हर कस्टमर को उसकी मर्जी की, उस अच्छी कॉस्ट की, लो कॉस्ट एंड अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए होती है। तो ये किस तरह से करना है, ये आजकल बेसिक प्रॉब्लम्स या जो बेसिक रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं वो इस एरिया को डिस्कस कर रही हैं। कुछ लोग हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट काम किए हुए हैं, वो 4 लोग हैं जिनकी हम इधर हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, बाकी भी हैं आपकी बुक के अंदर, यू शुड गो एंड डिस्कस सी देम। सबसे पहले जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इट इज़ एली व्हाइटनी। बेसिकली ही वाज बोर्न इन 1765, डाइड इन 1825। इन 1798 received governmental contract to make 10,000 muskets, showed that machine tools
could make standardized parts to exact specification. तो अब ये आप देख रहे हैं पहले एरा का है कि जी कॉस्ट किस तरीके से रिड्यूस करनी है. इसने जो बेसिक काम जो किया था वो ये किया था कि इसने मशीन्स से दिखाया कि जी हम मशीनों से स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बना सकते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स का मतलब क्या है कि जी आप एक तरह का पार्ट बनाओ, वो एक मशीन के अंदर भी लग जाए, यानी कि एक प्रोडक्ट के अंदर भी लग जाए और दूसरी प्रोडक्ट के अंदर भी लग जाए. अब आप देख रहे हो ना गाड़ियों का, आप जाते हो ऑयल फिल्टर लेते हो, एयर फिल्टर लेते हो, तो आपको एक गाड़ी का मॉडल होता है, उस गाड़ी पे वो लग जाता है. 1765 से पहले ये पॉसिबल नहीं था. ये उस वक्त पॉसिबल हुआ कि हमें पता चला कि कोई चीज़ होती है स्टैंडर्डाइजेशन, कि जी एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से बनाया जाए ताकि अगर उसके लिए कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से बनाए जाए यूजिंग मशीन्स, और अगर एक पार्ट ख़राब हो जाए तो दूसरी चीज़ का उस पर या दूसरा पार्ट उस पर लग सके. तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स का, और ये जो प्रैक्टिस उसने शो की थी कि आप मशीन से स्टैंडर्डाइज पार्ट्स बना सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था. इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ये कम हुई है, कॉस्ट रिडक्शन हुई है आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी दैट इज़ फ्रेडरिक डब्ल्यू टायलर, born in 1856, died in 1915, known as the father of scientific management. In 1881, as chief engineer of Midwell's Steel, studied how tasks were done, began first motion and time studies, created efficiency principle. तो ये वो बंदा है जिसने efficiency principles के जी किसी चीज़ को हम मॉनिटर किस तरीके से कर सकते हैं, किसी चीज़ की एफिशिएंसी किस तरह से निकाल सकते हैं, ये जो सारी स्टडीज़ की हैं ये फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने की हुई हैं. हेनरी फोर्ड, इसका नाम हर कोई जानता है, इसने पहली असेंबली लाइन बनाई थी, मूविंग असेंबली लाइन, जिसके अंदर गाड़ियाँ बनती थी. पहली दफ़ा गाड़ियाँ जो थी वो मूविंग असेंबली लाइन पे बनी थी, जिसकी वजह से आपकी कार्स की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी कम हो गई थी. इसी तरीके से एडवर्ड डेमिंग्स का बहुत ज़्यादा काम है इन यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू कंट्रोल द क्वालिटी. अब जाहिर बात है हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल तो पढ़ेंगे ही, एसपीसी, उसमें हम देखेंगे कि जी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं. वी विल यूज स्टैटिस्टिक्स टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. तो जो सारा ये कॉन्सेप्ट था ये एडवर्ड डेमिंग्स ने हमें पहली दफ़ा दिया था. सारी जापानीज़ इंडस्ट्री जो है जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती है, ज़्यादातर काम जो दे हैव लर्न मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम एडवर्ड डेमिंग्स. तो आज आप जो टोयोटा एंड होंडास देख रहे हैं दुनिया में, ये ज़्यादातर आर वर्किंग ऑन द principle of statistical quality control which were given by Edward Demings. Operations management के जो influences हैं वो बहुत सारी साइंसेस से हैं. ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं हम वो भी स्टडी करते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर. मैनेजमेंट साइंसेस से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर. बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ये बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से हमने जो है ना ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंपोर्ट किए हुए हैं या उनको अब इस्तेमाल कर रहे हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम दीज डिसिप्लिन्स. अब नए चैलेंजेस क्या हैं? अब जाहिर बात है दुनिया चेंज हो रही है, पहले क्या चैलेंजेस थे, अब क्या चैलेंजेस हैं. ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चैलेंजेस भी ज़रा से थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली जब हम ऑपरेशंस मैनेज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ते थे तो हमारा ज़्यादातर फोकस होता था लोकल मार्केट के अंदर. अब प्रॉब्लम तो नहीं आप कह सकते, इसको चैलेंज कह सकते हैं कि जी अब आपका लोकल मार्केट सिर्फ ग्लोबल फोकस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबलाइजेशन हो रही है
जिसकी वजह से आपको डिसीजंस भी अब ग्लोबल स्केल पे लेना पड़ रहे हैं। पहले जो अगर हम प्रोडक्शन करते थे दैट वाज इन बैचेस, कि जी आपने एक बैच 1000 यूनिट्स का बना के रख लिया इन्वेंट्री में। अब प्रॉब्लम है कि जी हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो हम इस तरह की बैच प्रोडक्शन या बैच शिपमेंट को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसके लिए फिर हमने जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जस्ट इन टाइम्स आर न्यू कॉन्सेप्ट्स के जी आपने चीज़ को उसी वक्त पहुंचाना है जिस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे ख़ास क्वांटिटी के अंदर ख़ास प्लेस पे। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जस्ट इन टाइम के हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बैच शिपमेंट की जगह जस्ट इन टाइम ज़्यादा रेलिवेंट होता जा रहा है। इनिशियली हम लो कॉस्ट बिडिंग करते थे, या जो हम परचेसिंग करते थे वो हमेशा लोएस्ट कॉस्ट परचेसिंग करते थे अपने सप्लायर से, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं और ऑन टाइम डिलीवरी के इश्यूज हैं, तो अब हमें सप्लाई चेन के पार्टनरशिप करनी पड़ती है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके साथ वी मेक पार्टनरशिप so that we can produce a good quality product. पहले जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्रोसेस था वो रिलेटिवली लंबा था। आपको याद होगा 70s के अंदर गाड़ियों के जो मॉडल्स थे वो 6-6, 7-7 साल के बाद नए मॉडल्स आते थे, मगर अब कार्स के मॉडल आहिस्ता आहिस्ता 3-3, 4-4 साल बाद आपका एक नया गाड़ियों का एक नया मॉडल आ रहा है कार का। तो क्या हो गया, रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। पहले स्टैंडर्डाइज पार्ट्स थे, अब क्या होता है कि जी मास कस्टमाइजेशन आ गई है, हर कस्टमर को अपनी मर्जी की चीज़ चाहिए। पहले अगर आपको कंप्यूटर खरीदते तो या तो सफ़ेद में मिलता था या तो काले रंग में मिलता था, अब आपको नीले में भी मिलता है, सफ़ेद में भी मिलता है, पिंक में भी मिलता है। तो ये क्या मास कस्टमाइजेशन हो रही है। और पहले जो हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर वो बेसिकली जॉब स्पेशलाइजेशन थी कि जी इस बंदे का ये काम है, इस बंदे का ये काम है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ऑपरेशंस दे आर बिकमिंग मच मोर कॉम्प्लेक्स, तो हमारी कोशिश ये है कि जी ज़्यादातर एम्प्लॉई एम्पावरमेंट करें, टीम्स डेवलप करें, ग्रुप थिंकिंग या ग्रुप पार्टनरशिप है उसकी तरफ ज़्यादा जाएं। तो पहले जो हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर चैलेंजेस थे वो कैसे थे और अब कौन से चैलेंजेस हैं वो सारी इन स्लाइड्स के अंदर समराइज हो रहे हैं। नाउ लेट्स गो हाउ वी कैन, अभी तक तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नाउ लेट्स हैव सम एन ओवरव्यू of what am I going to mean when I am going to say goods and when I am going to say services. So goods वो होती हैं जो tangible होती हैं, वो चीज़ें जिनको आप पकड़ सकते हो, फील कर सकते हो। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन होती है कि जी किसी चीज़ की एक प्रोडक्ट डेफिनेशन है, ये किताब है, ये इस्त्री है, ये कैमरा है, उसकी एक प्रोडक्ट डेफिनेशन है। प्रोडक्ट यूजुअली सेपरेट फ्रॉम प्रोडक्शन इज़ यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम कंजम्पशन, कि जो बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है वो सेपरेट है फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है या उसकी प्रोडक्शन होती है एक जगह पे और उसकी कंजम्पशन दूसरी जगह पे हो रही होती है। तो इस जो गुड्स होती हैं उनकी इन्वेंट्री कीप कर सकते हैं कि जी आपके पास 2 इस्त्रियां पड़ी हुई हैं गोदाम में, 3 इस्त्रियां पड़ी हुई हैं गोदाम में। अब सर्विसेज हैं उनको आप इन्वेंट्री में नहीं रख सकते कि जी मेरे पास 2 हेयर कट पड़े हुए हैं, जाहिर बात है ऐसे तो नहीं कर सकते ना, या मेरे पास 2 इसी तरह से कि जी जो सर्विसेज हैं कि जी 2 अकाउंट ओपनिंग ऑपरेशंस पड़े हुए हैं, ये तो सर्विसेज हैं सारी की सारी, या 2 कंसल्टेंसीज पड़ी हुई हैं, दीज आर सर्विसेज। इनको आप स्टोर नहीं कर सकते। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। गुड्स के अंदर के जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर कस्टमर इंटरेक्शन इज कंपैरेटिवली लो। अब सर्विसेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली दीज आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो आपको पकड़ नहीं सकते या जो उनको आप हाथ लगा कर फील नहीं कर सकते, दोज आर इंटेंजिबल थिंग्स। प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, कि जी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज योर प्रोड्यूसर, जो कंज्यूम आप जो हो कस्टमर हो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो जो आपको दे रहा है सर्विस और जो ले रहा है वो एक ही टाइम पे, और उसकी इन्वेंट्री आप नहीं कीप कर सकते। ऑफन जो होती हैं जो सर्विसेज होती हैं दे आर यूनिक, इसके अंदर कस्टमर इंटरेक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोडक्ट डेफिनेशन कंसिस्टेंट नहीं होती, बहुत टाइप की होती हैं, उनकी एक स्टैंडर्डाइज किस्म की सर्विसेज नहीं है। आपकी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट्स और है, दूसरे बंदे की कुछ और होंगी, तीसरे बंदे की कुछ और होंगी, तो देयर इज सम वॉट इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन। सर्विसेज ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड होती हैं और इनकी जो डिस्पर्शन होती है
इनको फ्रीक्वेंटली देने हैं। जिस तरह प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट की डिस्पर्शन इज़ नॉट एज फ्रीक्वेंट एज ऑफ सर्विसेज। हमारे पास सर्विसेज के अंदर क्या आ जाती हैं, पोस्टल सर्विसेज है हमारे पास, डेंटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स, फूड सर्विसेज, बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी की सारी दे आर काइंड ऑफ सर्विसेज। यू कैन नॉट स्टोर देम, दे आर कंज्यूम्ड एट द पॉइंट वेयर दे आर गिवन। ठीक है, जहां वो प्रोड्यूस हो रही हैं वहीं वो कंज्यूम हो रही हैं। ओवरऑल हम एक देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज की रिलेशनशिप्स के जी सर्विसेज का कितना वॉल्यूम है एंड मैन्युफैक्चरिंग का। इसके अंदर आप अगर देखो गौर से तो सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके अंदर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू सर्विसेज। बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर सर्विसेज आर मच मोर प्रिडोमिनेंट देन मैन्युफैक्चरिंग। अब हम देखते हैं कि जी ओवरऑल एक स्केल पे कि जी किन किन सर्विसेज को आप, किन किन कामों को आप सर्विसेज कह सकते हैं या किन किन चीज़ों को आप गुड्स कह सकते हो। आपकी ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, इंस्टॉल कारपेटिंग, फास्ट फूड मील्स, रेस्टोरेंट मील्स एंड ऑटो रिपेयर, हॉस्पिटल केयर। सो इधर तक आपके पास जो है ना जो चीज़ें वो प्योरली गुड्स हैं। उसके बाद आप थोड़ी बहुत सर्विस सेक्टर स्टार्ट हो रहा है कि जी आपके पास ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ जो हैं दे आर प्योरली गुड्स। कंप्यूटर्स जो हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत सर्विसेज भी आती हैं, सॉफ्टवेयर्स की, आफ्टर सेल सर्विसेज, तो थोड़ी बहुत उसके अंदर सर्विसेज आ रही हैं। फास्ट फूड्स के अंदर भी सर्विसेज आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स की, हॉस्पिटल्स के अंदर पार्टली गुड्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, कंसल्टिंग एंड टीचिंग, काउंसलिंग, दे आर ऑल सर्विसेज। ठीक है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेशोज या एम्प्लॉयमेंट वॉल्यूम्स हम यूएसए के देखते हैं कि जी ओवर द ईयर क्या यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है या कम हुई है। तो आप देखो आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं उनमें सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग आहिस्ता आहिस्ता या आइदर इट इज़ कांस्टेंट और इट इज़ डिक्लाइनिंग। अब हम देखते हैं कि जी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी हैव टू स्टडी प्रोडक्टिविटी। लेट्स सी कि जी प्रोडक्टिविटी हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट्स डिवाइडेड बाय द इनपुट। अब आपने किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है ना, तो यू हैव टू नो कि जी वो आउटपुट कितनी हो रही है और उसमें कितना काम लग रहा है। उसके अंदर किसी भी काम की या किसी भी एक्टिविटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की आपने प्रोडक्टिविटी देखनी है ना, यू हैव टू कैलकुलेट कि जी कितना काम या कितना रिसोर्स उसके अंदर जा रहा है और कितनी वैल्यू उससे आउटपुट आ रही है। तो आउटपुट बाय इनपुट का जो रेशो होता है दैट इज प्रोडक्टिविटी। अब आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जी प्रोडक्टिविटी बेहतर की जाए। प्रोडक्शन एक और चीज होती है विच ओनली मेजर्स आउटपुट। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 1000 यूनिट्स पर डे की। तो ये क्या है, कितनी चीजें आप बना सकते हो। ये बात प्रोडक्टिविटी का मैं ये नहीं होता। प्रोडक्टिविटी जो होती है दैट इज अ रेशो कि कितनी चीजें आप बना सकते हो और कितनी इनपुट पे बना सकते हो। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम एक एग्जांपल देखें, यूएस की एग्जांपल लेते हैं, तो यूएस का जो इकोनॉमिक सिस्टम है या जो यूएसए का एवरेज जीडीपी है, इट इज अबाउट 2 और 3%। ठीक है, 2 और 3% में किस तरीके से वो जीडीपी क्या हर साल वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, उस प्रोडक्टिविटी के डिफरेंट परसेंटेजेस क्या है, लेट्स डिस्कस। ओवरऑल आपकी यूएस इकोनॉमी के अंदर 3 तरह की इनपुट्स जाती हैं। लेबर इनपुट जाती है, कैपिटल इनपुट जाती है एंड मैनेजमेंट इनपुट जाती है कि जो लोग उनको मैनेज कर रहे हैं। ये जो इकोनॉमी है ये 2.5% ऑन एवरेज बढ़ रही है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है कि जी जो पहले वो काम कर सकते थे हर साल वो अपने अंदर बेहतरी ला रहे हैं 2.5% की। और ये जो बेहतरी आ रही है इट इज अ मिक्स ऑफ कैपिटल विच इज 38% कैपिटल के जी जो पैसा डाला जा रहा है ना उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आ रही है, 10% लेबर की वजह से आ रही है कि जी जो नया लेबर उसके अंदर इस इकोनॉमी के अंदर आ रहा है उसकी वजह से, और जो 52% है वो उसकी मैनेजमेंट की वजह से आ रही है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिस्टम्स उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही होती हैं वो आपकी एक
जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है ना, उसकी वजह से आ रही होती है। तो प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? यूनिट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय इनपुट यूज्ड, मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस की इंप्रूवमेंट जो होती है वो प्रोडक्टिविटी होती है, रिप्रेजेंट्स आउटपुट रिलेटिव टू द इनपुट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओनली थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैन आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इम्प्रूव। आपकी अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं होगा। अगर आप आज 2 घंटे का जो काम था जो आप कल 2 घंटे में कर रहे थे, अगर आप 1.5 घंटे में नहीं कर रहे तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं होगी। अगर कल जो काम आप 4 घंटे में कर रहे थे आज 3 घंटे में नहीं कर सकते तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हुई। तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी बेहतर होती है जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर कुछ कैलकुलेशंस हम देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी आपने देखनी है, सीधी सीधा सा आप जितनी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं लेबर और कितना टाइम लग रहा है, लेबर आवर्स जितने लग रहे हैं उससे आपके पास लेबर प्रोडक्टिविटी आ जाती है। लेबर आवर आप किस तरह से निकाल सकते हो कि जी अगर आपके पास 5 लेबर हैं, दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में आपके पास कितने लेबर आवर्स हैं? 8 5 40 लेबर आवर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास 5 लेबर्स हैं जो 8 घंटे काम कर रहे हैं दिन के अंदर और वो हफ्ते के अंदर 5 दिन काम करते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा? और 5 4 20, ऑलमोस्ट 200 लेबर आवर्स पर वीक हो जाएगा। तो ये लेबर आवर्स पर डे था तो वो पर वीक था। तो इस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं कि जी कितनी यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, कितना आपके पास लेबर आवर था। अब ये जो है ये सिंगल फैक्टर है कि जी आउटपुट जो है हमारी वो एक ही इनपुट से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर ज्यादा इनपुट्स हो, आउटपुट तो है हमारे पास मगर इनपुट्स जो है वो ज्यादा हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी यूज करते हैं। लेबर अगर जा रहा है, मटेरियल जा रहा है, एनर्जी जा रही है, कैपिटल पैसा लग रहा है और भी कोई आपकी एफर्ट लग रही है, तो ये सारी की सारी फिर मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी से कैलकुलेट होती है। आउटपुट तो आप कोई चीज बना रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर जो इनपुट जा रही है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जा रही है। अब जाहिर बात है डिफरेंट फॉर्म्स में जा रही है तो लेबर आवर्स हैं इधर। अब मैं मटेरियल और लेबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं इनको एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैं इन सारों को डॉलर अमाउंट्स में या पैसे की अमाउंट में ले आऊं, तो फिर ही मैं ऐड कर सकता हूँ ना। अब देखो अगर मैंने सेंटीमीटर और केजी को ऐड अप करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं तो नहीं कर सकता, तो मुझे इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना किसी खास यूनिट के अंदर। इसी तरह से मैं लेबर आवर्स और मटेरियल्स को किस तरह से ऐड कर सकता हूँ? आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? हम लेबर को भी डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे, मटेरियल्स को भी डॉलर में, एनर्जी को भी, कैपिटल को भी, कैपिटल तो होता ही ऑलमोस्ट डॉलर, होता ही डॉलर्स के अंदर है, और मिसलिनियस कॉस्ट जो है उनको भी हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं कि जी प्रोडक्टिविटी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलिन टाइटल्स वांट्स टू एवेल्युएट इट्स लेबर एंड मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी विद अ न्यू कंप्यूटराइज्ड टाइटल सर्च सिस्टम। द कंपनी हैज अ स्टाफ ऑफ 4 each working 8 hours a day for a payroll of about $640 per day and an overhead cost expenses of about $400 per day. Colin processes and closes 8 titles per day. A new computerized title search system will allow the processing of 14 titles per day. Although the staff, their working hours and pay are the same, the overhead expenses are now 800. तो पहले आपके overhead expenses इतने थे, अब आपके overhead expenses इतने हैं। आप पहले 8 टाइटल्स पर डे मैनेज कर रहे थे, अब आप 14 कर रहे हो, नया सिस्टम लग रहा है। जो आपके पास स्टाफ है उसकी जो पैसे आपके स्टाफ ऑल्दो इट्स सेम, तो आपका एक ही स्टाफ की जो पे है वो इतनी है। पहले जो आपका ओवरहेड था वो 400 था, अब आपका 800 है। तो स्टाफ की जो पे थी वो पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है। जो पहले आपका ओवरहेड था इतना था, टाइटल्स जो आप प्रोसेस कर रहे थे वो इतने थे। तो लेट्स सी कि जी अगर 4
स्टाफ वर्कर्स हो 8 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी जो पे है वो इतनी है, टोटल मिला के एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, ओवरहेड उसका इतना है, तो आपने लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो जितना वो आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, जितना लेबर टाइम लग रहा है, तो आपने लेबर प्रोडक्टिविटी सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकाल ली। अब आपने नया सिस्टम है उसके अंदर क्या किया, तो वो नया सिस्टम लगाने से 14 टाइटल्स बन रहे हैं, उतना ही लेबर आवर्स लग रहा है, तो अब क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। तो ये दोनों क्या है, ये सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि इनपुट पे हमने एक ही फैक्टर लिया हुआ है, दैट इज लेबर। अब हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हैं, तो आपके पास 8 टाइटल्स बन रहे हैं एक दिन के अंदर, एक जो लोग काम कर रहे हैं उनका टोटल पैसा $640 लग रहे हैं, और जो ओवरहेड कॉस्ट है वो इतनी है, तो जाहिर बात है हमने दोनों को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये मल्टीपल फैक्टर्स आप इनपुट पे डाल रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी पहले इतनी थी पुराने सिस्टम में, नए सिस्टम के अंदर आपने जब ये डाली तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी हो गई। अब देखें ये मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, और आपकी पहले वाली प्रोडक्टिविटी लेस थी, अब वाली प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इवन दो द अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग इज मोर। अब ये जो नया सिस्टम है ये काम को तेजी से कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ये तो हमने देख लिया कि जी हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। लेट्स नाउ सी कि जी आप किस तरीके से is it easy to measure productivity in service sectors। अब नॉर्मली जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जी हॉस्पिटल्स हो गए, कंसल्टेंसीज हो गई, लॉ फर्म्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सारी की सारी क्या है, ये सर्विसेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो इसके अंदर हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी सर्विस सेक्टर्स जो हैं ये इसके अंदर दीज आर लेबर इंटेंसिव जॉब्स, तो इसके अंदर प्रोडक्टिविटी मेजर करना इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट। अब जाहिर बात है सर्विसेज के अंदर आपके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं दे आर मच मोर डाइवर्स देन इन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स एंड इंडिविजुअल डिज़ायर जो होते हैं कस्टमर्स के वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए आप एक ख़ास स्टैंडर्डाइज प्रोडक्टिविटी हर तरह से हर सर्विस के लिए नहीं निकाल सकते। इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट रिलेटिवली डिफ़िकल्ट। ज़्यादातर जो आपके सर्विसेज के काम होते हैं दे आर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल टास्क, तो उसके अंदर भी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। सर्विसेज को आप मैकेनाइज नहीं कर सकते या ऑटोमेट नहीं कर सकते, तो जब ऑटोमेट नहीं कर सकते तो तब भी प्रोडक्टिविटी निकालना ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। और ज़ाहिरी बात है कि जी आप सर्विस की क्वालिटी को भी उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते जिस तरह आप मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो, तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। इट डजंट रियली मीन कि जी आप सर्विस की प्रोडक्टिविटी निकाल नहीं सकते, बहुत सारे केसेस के अंदर यू कैन डू इट, एंड देयर आर टेक्निक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर सीरीज that you can actually calculate calculate different aspects of services, मगर they are relatively difficult as compared to finding out the productivity of manufacturing activities। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जरा प्रेजेंटेशन थी कि जी क्या सर्विसेज के अंदर is it relatively easy or is it relatively difficult। अब हम देखते हैं कि जी ओवरऑल एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ऑपरेशंस मैनेजर्स की। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऑपरेशंस मैनेजर की इज़ टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ सेफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, कि जी आपने सेफ एंड क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है। ऑपरेशंस मैनेजर की पहली एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जी जो चीज़ वो बना रहा है वो सेफ हो, उससे आपके कस्टमर को कोई नुकसान ना पहुंचे और वो क्वालिटी आइटम हो। दूसरी जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी यू हैव टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, प्रोसेस को इस तरह से डिज़ाइन करे कि जी एमिशन जो है या जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो, प्रोसेस की एफिशिएंसी अच्छी हो, प्रोसेस के अंदर जो इनपुट जा रही है उससे ज़्यादा आउटपुट निकले। ये सारी की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑपरेशंस मैनेजर्स की, क्योंकि ऑपरेशंस मैनेजर ने ही प्रोड्यूस करना है ना, मार्केटिंग वालों ने डिमांड क्रिएट करनी है, फाइनेंस वालों ने, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वालों ने मॉनिटर करना है फाइनेंशियल इंटरेक्शंस को। आपका काम है, ऑपरेशंस मैनेजर्स का काम है टू प्रोड्यूस, तो जाहिर बात है आपका एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी सिस्टम की तो उतना ज़्यादा कम इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे।
प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क प्लेस कि जी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक सेफ सिक्योर वर्क प्लेस दिया जाए, ऑनरिंग स्टेक होल्डर कमिटमेंट, जिन लोगों ने आपके अंदर आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है तो उनके साथ जो कमिटमेंट की गई है प्रोडक्टिविटी की, प्रॉफिट्स की, वो भी ऑनर करना एक ऑपरेशंस मैनेजर का काम है. नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड विद यू माई बैकग्राउंड कि जी मैं कहाँ से आया हूँ, क्या काम किया हुआ है, कहाँ कहाँ जाके मैंने काम किया, कहाँ कहाँ पढ़ा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े. फिर उसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन की चैप्टर 1 की, विच इज़ बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजर्स के जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या काम होता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं और ऑपरेशंस मैनेजर्स का काम क्या होता है, व्हाट इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. हमने ये भी देखा कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस between services, why we have to study operations management, what operations managers do. फिर हमने कुछ significant histories पढ़ी या significant लोग पढ़े कि जी we studied 3 significant eras in operations management: cost reduction, quality improvement and mass customization. और फिर हमने कुछ जो है पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर, उनके बारे में पढ़ा. यू कैन ऑलवेज फाइंड मोर पर्सनैलिटीज़ लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रेजेंटेशन इन योर बुक. देयर आर अदर पर्सनैलिटीज़ विच वर आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट एंड विच वर वेरी हेल्पफुल इन कल्मिनेटिंग दिस फील्ड ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. फिर उसके बाद हमने देखा कि जी हम सर्विस सेक्टर के अंदर किस तरह से ऑपरेशंस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन से नए टॉपिक्स हैं या ट्रेंड्स हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर. और आखिर में जो हमने देखा कि जी प्रोडक्टिविटी होती क्या है, इसको मैयर कैसे की जा सकती है, सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. हमने देखा कि जी सर्विस सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी इज़ समवॉट रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट. It is not impossible but it is somewhat difficult. और फिर आखिर में हमने ethical and social responsibilities of operations managers की देखी हैं कि जी operations managers जो होते हैं उनकी क्या social and ethical responsibilities होती हैं towards the society, towards the fellow human being. ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी के सारे concepts जो हैं ये chapter 1 के अंदर डिस्कस हुए हुए हैं. I would really appreciate and I would really suggest to you कि जी आप चाहें आप बुक को खोलें, बुक के डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करें, जो सेलिएंट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने आज इधर डिस्कस किए हैं, उनकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो बुक के अंदर जाके उसको रीड करें. ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट करें कि जी ऑपरेशंस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं. जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, जो टॉपिक्स यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस 32 लेक्चर कोर्स, उनको ज़रा जाके देखें, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ें कि जी प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, लेआउट डिज़ाइन क्या होता है, इसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, लोकेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स क्या होते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़नी है. फोरकास्टिंग हमने पढ़नी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने पढ़नी है. तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं आज, इनके बारे में जाके आप ज़रा सी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें, ताकि जो इंडिविजुअली जब मैं आपको बाद में एक एक टॉपिक पढ़ाऊं तो यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ उसका फ़ायदा क्या है और ओवरऑल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के अंदर वो टॉपिक क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद. अस्सलाम वालेकुम.